Dear students, after completion of this exercise 8.2, our next topic is the compound interest. So first of all, we study here the simple interest. In previous classes, we have studied the simple interest. See here, interest is the extra money paid by institution like banks or post office on a money deposited with them. Interest is also paid by people when they borrow money. We already know how to calculate simple interest. सिंपल इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट कहते हैं उसको. बैंक में जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं मतलब कि हम मनी डिपॉजिट करते हैं या मनी फिर बोरो करते हैं. डिपॉजिट करना या फिर बोरो करना, दोनों के ऊपर भी इंटरेस्ट होता है, और वो इंटरेस्ट है हमारे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट. यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस. नाउ today we see one example of this topic, simple interest. See here, first of all we write here the formula simple interest. Simple interest, simple interest means SI here. SI is equals to P into R into T divided by 100. Here SI means simple interest, then P means principal, R means rate of interest, and T means here time period. And the formula for amount is equals to P plus SI, or we can write here the I, P plus I. For amount we write here the A, amount के लिए हम A लिखते हैं, means A equals to P plus I. Now we see here example, find interest. Interest means here simple interest and amount, to be paid on rupees 15,000 at 5% per annum, after 2 years. This is our question, students. So we write here the given value, means here P is equals to, P means principal, is equals to, here is rupees 15,000, then R and a rate of interest, here value is 5%, then time period means T is equals to 2 years. We have to calculate here the interest, means simple interest, and the amount. So now this is our formula, I is equals to P into R into T divided by 100. Now we put the value here. Here P means principal, 15,000, rate of interest here is 5, and time period 2, divided by 100 here. 0 zeros cancelled here, means 150 into 5 into 2. So 150 into here 5 into 2 means 10, and the product of these two 1500. This is the value of interest. ये हमारे लिए इंटरेस्ट हो जाता है. Now after that we calculate amount. Here amount equals to P plus I, means here P is a 15,000 and here interest is 1500. So we add these two, 15,000, 1500.
0 0 5, here 5 plus 1 means 6 and 1 means rupees 1,65,000. दिस वैल्यू इज अमाउंट, ये वैल्यू हमारे लिए अमाउंट हो जाती है एंड इंटरेस्ट मीन्स हियर 1500 इंटरेस्ट हो जाता है. नाउ हियर आवर टॉपिक इज कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि हमने पहले ही प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. नाउ वी स्टडी हियर द कंपाउंड इंटरेस्ट. हम यहाँ पे हमें जो स्टडी जो करना है कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक पे. कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स क्या है ये पहले जान लेते हैं हम. सी हियर, normally the interest paid on or charged is never simple. The interest is calculated on the amount of the previous year. This is known as interest compounded or compound interest. Compound interest means जिस तरह से हमें यहाँ पे अमाउंट मिला है ये हमें 2 years के बाद मिला है, फिर ऐसे ही इंटरेस्ट को ये इंटरेस्ट मिला के हमें अमाउंट मिल चुकी है. प्रिंसिपल जो है, जो वैल्यू हमने डिपॉजिट की है इस हिसाब से 15,000 है और आफ्टर 2 years हमें मिला है यहाँ पे टोटल अमाउंट. यहाँ पे इंटरेस्ट जो है 1,50,000 है, नॉट ऑफ 15,000, 1,50,000 है और अमाउंट जो हमें मिला है वो इंटरेस्ट मिला के वो है 1,65,000, मतलब 1500 में एक्स्ट्रा में मिले हैं. तो अगर हम और कुछ समय तक हम इसको अगर डिपॉजिट करते हैं अमाउंट को, इस वैल्यू को, यानी 2 years के बाद ये वैल्यू हो गई हमारे 1,65,000. अगर यही अमाउंट अगर हम फिर से उसको कंटिन्यू अगर हम आगे की ईयर्स के लिए और 2 years के लिए अगर हमें डिपॉजिट करते हैं तो ये वैल्यू हमारे लिए प्रिंसिपल बन जाती है और जो इंटरेस्ट जो बनेगा वो इस अमाउंट पर बनेगा, मतलब 1,65,000 के ऊपर हमें इंटरेस्ट बनेगा और ऐसे ही ये इंटरेस्ट बढ़ते चला जाता है और इसी इंटरेस्ट को हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट है. यहाँ जो हमने फाइंड किया है इंटरेस्ट जो मिला है वो हमारे लिए सिंपल इंटरेस्ट है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो होता है कंटिन्यूशन में. अगर हम वो अमाउंट जो है अगर हम उसको डिपॉजिट करते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ते चला जाता है. ये 2 years के लिए अमाउंट हो गई, अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल मिला के हमें अमाउंट मिल चुकी है और अगर ये अमाउंट हम अगर आगे और 2 years के लगते तो ये हमारे प्रिंसिपल हो जाएंगी और जो इंटरेस्ट जो बनेगा वो इसी अमाउंट पर बनेगा और इस तरह से वैल्यू बढ़ती चली जाती है, अमाउंट बढ़ती चली जाती है. इसी को कहते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट. सो नाउ वी हैव गिवन हियर अ सिंपल फार्मूला फॉर अ कंपाउंड इंटरेस्ट. Compound interest. Here A is equals to P bracket 1 plus R upon 100 bracket to the power n. Here A means amount. Here R means rate of interest, P means the principal, and here is N means time period. And then compound interest is equals to amount minus principal means A minus P. अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल माइनस जो अमाउंट पहले यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट होती है और फिर बाद में इंटरेस्ट, तो यहाँ पे अमाउंट मिलने पर फिर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है. तो यही वो दो फार्मूले हैं जिसको हमें आगे यूज़ करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसका यूज़ करना है और वहाँ पे हम अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करेंगे.